The biggest pinball machine in North India, Rolling Mill 2, the heart of the Tata Iron and Steel Company. 15-ton ingots known as heats must be rolled and tempered before they cool off. Mr. Sinha, a 42-year-old graduate in physics and electronics, is foreman in charge of the 600 workers in Rolling Mill 2. Until recently, India had almost no industry at all. It was a nation of craftsmen, traders, and in Mr. Sinha's case, farmers, who work the land from dawn to dusk. His parents feel he has forsaken a hard and worthy life for the soft option of an 8-hour day. But Mr. Sinha is proud to be involved in India's industrial revolution. 4 out of 5 Indians live in country villages, where blacksmiths once smelted their own iron. Now these skills have died. They use company steel to forge their customers' ploughshares and billhooks. Once a year, they give silent praise to their guardian deity, Vishwakarma, the divine engineer, who hammered out the universe on his anvil. He taught them their ancient craft, and they thank him for their inheritance and for the gift of iron ore, fire, and charcoal. Each year, at the same time, the workers in Rolling Mill 2 hold a modern version of the same ritual. Vishwakarma has evolved into the modern god of India's new industrial working class. Vishwakarma is now a painted deity, the workers' protector in a dangerous trade, who can bless the welder's shield and the mechanic's tool. Mr. Sinha joins his workforce as both men and machines are blessed. इंडियन ट्रेडिशन वो बहुत पहले से चला रहा। जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके कोई गॉड नहीं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं। इसके लिए आज लोगों ने एक गॉड का जन्म दिया, जिस गॉड का नाम रखा गया विश्वकर्मा। विश्वकर्मा का मीनिंग है world of work. Coconut mill, a treat for the gods, is broken over the controls. These workers are a part of the small and fortunate minority of Indians who have full-time work. They are in a union and their job is guaranteed. Six days a week, Mr. Sinha heads for the factory from his small 3-roomed house in the company township. Each day, 54,000 workers enter the plant. Mr. Sinha, earning £47 a week, is an upwardly mobile peasant with the luxury of an open-top scooter. Hello. ठीक है? कैसा चल रहा है सर? मिल तो आपका मिल ठीक नहीं चल रहा है. It has rolled only 121. First stop is the planning department to check the day's heat schedule. Then, the soaking pit top, where ingots are heated before being rolled. ये लाइनअप है, लाइनअप हर जगह 32 में, 46 इंच मिल में और शिपिंग में, और ये MLS का लाइनअप दे दो।
हेलो सोकिंग पिट। अरे माल ठंडा है बहुत। ठीक है, प्लेन अब खाली करो। As foreman, Mr. Sinha has to push both men and machines to meet production targets. एक इनगट दिया SP33 गौत्रिक। और उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद क्या आ रहा है? The taking the heat means I am taking ingots, our raw material, as well as heat as a fuel. That's why that ingots are called heat. At the steel melting shop, liquid steel is poured into ingots for delivery to rolling mill 2. In the scorching Indian summer, temperatures inside the plant go above 130 degrees Fahrenheit. Safety standards and cleanliness are crude to say the least, but accidents are rare. Despite the working conditions, employees respect both the plant and its management. The last strike was in 1937, over half a century ago. The 6 great blast furnaces, working round the clock, pour out over 2 million tons of molten iron a year. Where tribal peasants once hunted game, now crucibles and furnaces belch out smoke and dust over the forested hills of central India. The steel mill was pioneered by a remarkable Parsi family called the Tatas. Today it is still a family business. Many workers have been part of the Tata industrial family for years, with relatives working here since the first steel was poured. In 1911, Tisco, the Tata Iron and Steel Company, was the first steel mill in British India. The colonial masters did all they could to hinder the march of industry. India was their marketplace. The company was formed in 1807. The first iron was produced in 1811, and the first steel in 1907, 1911, and then 1912, the first steel. So 1907 to 1988 is 81 years since the company was formed. We had an extraordinary man in charge of Tatas at that time called Mr. Jamshedpur Tata, a real visionary. He made up his mind that if India was to be free, it had no meaning at all unless it was economically strong and free as well. At that time, Britain had ruled East India for 150 years. Industrial development had been almost nil, and India had just begun its 40-year struggle for independence. Jamshedpur Tata was a remarkable businessman and philanthropist who insisted that the welfare of the new labouring classes must be the first care of the employer.
9 to 10 में चार्जिंग हो गया 22। हेलो मिस्टर सिन्हा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। Your pit number 8 is giving very stiff material, and I have asked them to stop the material, but they are not stopping. Please stop further rolling from that pit. पिट नंबर 8। Yes, this pit. वो लोग इसको रेडी किया है। No, no. I have seen previously 2 ingots. They have rolled very badly. I don't want further drying from this pit. Please stop. I will stop rolling. I will stop rolling. I am here for production as well as quality also. But company has fixed here a police fellow. He is looking after me so that I cannot roll, I cannot destroy the quality. Is he your enemy or your friend? In workplace he is my enemy, and outside we are very good friends. We are actually controlling the quality, and so long the quality is being controlled, we are friends, because the overall quality will help the company as well as the nation, and so we are friends. 8 नंबर 2 नंबर, उसके बाद 9 नंबर जाएगा 9 बजे। उसके बाद मिल बंद करेंगे। मिल पूरा चेकिंग करने का है, मिल पूरा चेकिंग करने का है, और आपको दरवाजा बंदी करने का है। ठीक है, अब तो रेडी है, आप मैकेनिकल लेके रेडी कर रहा है। मैकेनिकल रेडी कर रहा ठीक है, अब टाइम दीजिए आपको। अच्छा ड्राइवर आप आराम कर ले। अच्छा ड्राइवर है कहाँ? एक सिंह आएगा ना? ठीक है, तो देखिए अगर हो जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का, जोर से रोलिंग करने का। और कितना इनगट है? हाँ, 4 इंगट होना चाहिए। 4 इनगट। अच्छा, तो ये 4 इनगट देने के बाद 18 नंबर दीजिएगा। ओके देगा। और 18 के बाद 2 नंबर स्लैब, उसके बाद मिल बंद हो जाएगा। ओके, आप लगा लिया पूरा टेकल लग गया ना? हम भी वहाँ रहेंगे। ओ, ये छेदा है? Mr. Sinha has to manage frequent breakdowns in the aging machinery as part of his daily schedule. घर तो हमको वहीं लगता है जहाँ मेरा जन्म हुआ, कल्याणपुर में मेरा जन्म हुआ, और हमको ऐसा लगता है, वहाँ जाने पर ऐसा लगता है कि मेरा घर यही है, अपने लोग वहाँ हैं। आप अवकाश प्राप्त करने के बाद कहाँ जाके रहना पसंद करेंगे, इस शहर जमशेदपुर में या अपने पुराने गांव कल्याणपुर में? मैं अपने गांव में जाकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। शांत वातावरण है, खेती है, अच्छे लोग हैं, वहाँ हमको ज़्यादा पसंद है। मेरे परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे पिताजी हैं। वो हमारे परिवार को बनाने वाले हैं, और परिवार के हर आदमी के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत चीज़ मैं अपने परिवार के बारे में नहीं भी जानता हूँ, वो पिताजी सबको जानते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण। Mr. Sinha, his wife and 3 sons take the 13-hour train journey north. It crosses the river Ganges, the great jugular vein that feeds North India. कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पड़ेगा? घर एक समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कल्याणपुर है। कल्याणपुर चौक बहुत फेमस है। तो नज़दीके है समस्तीपुर से? 12-13 किलोमीटर है। हाँ। इधर आना कहाँ से हो रहा है? स्कूल में काम करते हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं, और फिर घर जाते ही हैं। दुर्गा पूजा का छुट्टी है, और उसी में। साल में कई बार जाते हैं? हम तो 1 बार जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग 2 बार जाते हैं। हाँ, जरूरी है साल में 1-2 बार। हाँ,
ब्याह शादी होता है तो आते हैं। ब्याह शादी में भी जाना पड़ता है या क्या हुआ है। वैसे इस बार हम लोग जा रहे हैं छुट्टी भी मनाने। थोड़ा ये भी है कि माता जी पिताजी का तबीयत का ठीक नहीं रहता। बच्चे सब, तुम लोगों को कैसा लग रहा है जाने में? गाँव जाने में मज़ा आता है? खूब खेलते होते हो वहाँ पर? अच्छा, गाँव ज़्यादा पसंद है, लेकिन तब वहाँ कुछ बच्चों के लिए क्या कुछ ले जा रहे हैं यहाँ से, या कहीं खरीदेंगे पहले से? वहीं गांव में लेंगे। गांव में अच्छा दूध का अच्छा रसगुल्ला मिलेगा, वही लिया जाएगा और क्या। ले बाबा, ठीक है ना? ये और सब हाँ रहना है। चल छुट्टी में आए। आए हाजी आए। और क्या हाल चाल? तबीयत ठीक है? हैं? क्या हाल है बाबूजी? हैं? एकदम तबीयत ठीक रहती? दाल में कुछ हाँ, और सब ठीक है ना? हाँ माता जी। क्या हाल चाल है माँ? First, his three sons touch their grandmother's feet. Finally, Mrs. Sinha. क्या हाल है रे? हे बाबू, क्या हाल है? ये मिठाई मार दी थके। और की हाल चाल हो? तो हाथ के की भेलो? टेढ़ा हो गया हैं? काहे काटने गए थे? क्या ये जो तोड़ने गए थे तो काहे के लिए हैं? हे छोटन जी, बउआ कहाँ है रे? हाँ? अरे री 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 गुडुआ ऐसा हो गया। हैं? गुडुआ ऐसा हुआ है। हो गया। देखी तो कैसे भेलो? गुडुआ ऐसा हैं? गुडुआ लंबा है खूब? खूब लंबा है। हैं? 2 महीना हो गया इसका। खूब लंबा है ना? ये काय से कर रहा है ऊ करके? आइए बैठिए। अरे बिट्टू मुको बैठ करके क्या इतना वो बैठ करके सब बात या करो सब कोई। कितना बच्चे हैं? 14-15 को है पता पति। कौन पूछे हैं? Cattle are still the backbone of Indian agriculture. They plough the family's 60 acres of land, pull the carts and manure the fields. They are the first thing that Mr. Sinha wants to see after greeting his family. His eldest brother shows him a nasty infestation of blood-sucking ticks that is weakening the calves. ये पूरे इसके ब्लड को चूस लेता है। ब्लड को चूस? हाँ, इसलिए इसकी हालत ये है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो गया इसको, लेकिन ये हम लोग के देह में भी लगेगा क्या? नहीं, मवेशियों को होता है। देखे देखे देखे। अरे मवेशी को होता है। अरे बाप रे, तो एकदम इसका तो जान निकाल देगा ये सब। एक ठो समझिए 2-2 बूंद 3-3 बूंद लेगा, कितना खून होगा। The old father, born and bred into the professional caste of scribes, looks on from the shade of his veranda as his sons survey their inheritance. बैल खाता ही नहीं। तो काफी दुबला हो गया हुआ है। और पानी वानी दिया इसको? हमारे कास्ट की गृहस्थी नहीं चलती है। वो नौकरी करने का कोशिश करते हैं कि किसी ऑफिस में कोई काम करें, या पेशकार होएं, चाहे किरानी होएं, चाहे अफसर होएं, इतने ही काम करते हैं। कास्ट का खास पेशा है नौकरी। और इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जमींदारों के साथ थे, राजा महाराजा के साथ थे, जमीन जायदाद का कागज पत्तर देखते थे, तो इस हिसाब से उनके पास जमीन भी आ गई।
लेकिन उस ज़मीन के आने के बावजूद भी वो खेती करने के लायक नहीं, इतने सुकुमार हैं कि वो खेत में जा नहीं सकते हैं। उनके लिए बेहतर ये है कि वो किसी ऑफिस में बैठकर धूप से बचे रहें और कागज कलम का काम कर अपना वो जिंदगी जिए। The ancient caste system of being born into a particular group from which it is impossible to escape is deeply embedded in Indian society. If your father is a sandal maker, you too will be a sandal maker. But the Sinhas have always been scribes, educated, soft-skinned people who have become landowners in a world of horny-handed peasantry. They think themselves too grand to get mud on their sandals. Mr. Sinha is deeply attached to his family and its land. Brought up in the village, he often dreams of his fields. They are his inheritance, his lifeblood, a vital part of his cultural makeup. DAP यूरिया दाना सब कोई महंगा ये नहीं है, ये लगता है कि सब छोटा छोटा है। हाँ, इधर बारिश नहीं हुई थी, इधर बारिश कम हुई है बारिश। As a traditional scribe, his father became an engineer under the British, but he gave up his foreigner's profession and followed Mahatma Gandhi in the struggle for Indian independence. He became a freedom fighter, returned to the land and expanded the family farm. दुनिया में कोई व्यवसाय नहीं है। गृहस्थी में एक अन्न आप डालते हैं और 1000 अन्न उससे पैदा होता है। कोई बिजनेस में भी 10% 15% नफा होता है और गृहस्थी में तो 100 गुना एक बीज से पैदा होता है। इस वास्ते गृहस्थी का मुकाबला क्या व्यवसाय करेगा। लेकिन देश की उन्नति के लिए सिर्फ कल्टीवेशन या खेती ही मुख्य चीज़ नहीं है। अगर हमारे देश में जो समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी की, उसके लिए उद्योग धंधा भी एक प्रमुख यानी बात मानी जाती है। उद्योग धंधा होने से देश में जो बेरोजगारी बेकारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। साथ साथ औद्योगिकरण होने से देश का विकास होगा। हमारे देश में जो दूसरे देशों से हम अपने लिए जो ज़रूरियात की सामान हैं वो हम दूसरे देश से मंगवाते हैं, हम खुद अपने यहाँ जो उसको प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो वो पैसा जो हम दूसरे देश को देते हैं वो नहीं देंगे, अपने यहाँ बनेगा। तो जो भी मुख्य समस्याएं हमारी आज़ादी के बाद हम लोगों के सामने है, उस समस्या में औद्योगिकरण भी मुख्य है। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान है, अधिक लोग खेती पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ के जनरल मेंटेलिटी जो है वो खेती की तरफ है। हम स्वार्थी हैं, इसलिए हम चाहते थे कि भोला बाबू हमारे साथ रहे, मगर भोला बाबू चले गए नौकरी में वहाँ, तो अब सुख से दुख से जो है सो वही है। लेकिन हमको ये पसंद नहीं है। इसलिए नहीं पसंद है कि अगर यहाँ रहते तो ये खेती बाड़ी देखते, कंट्रोल करते, तो वहाँ से यहाँ पर ज़्यादा आमदनी होती। पूरा पावर ऑफ है। रोके रखे उसको, रोके रखे, बाकी सीधा करेगा। थोड़ा इलेक्ट्रिकल को भेजिए जल्दी। अब नहीं जाएगा आगे, अब जाएगा नहीं आगे। थोड़ा इलेक्ट्रिकल को भेजिए, इधर पूरा पावर ऑफ हो गया। हाँ बोला जाए। अरे उससे कोई काम नहीं होगा भाई, उसको छोड़ के किसी को भेजिए दूसरे को।
इंग्लैंड में करीब 1 मिलियन टन स्टील बनाने के लिए 2000 मजदूर की आवश्यकता होती है। यहाँ हम देखते हैं कि 35,000 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? यही बात है कि हमारा जो फैक्ट्री है बहुत पुरानी फैक्ट्री है और इस पुरानी फैक्ट्री में काम करने का जो ढर्रा है, मैकेनाइज नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए काम करने का ढर्रा वही पुराना है। आदमी भी उतना ही रखा गया है, इसलिए यहाँ पर आदमी ज़्यादा हैं। यूरोप में जो यूरोप का एक आदमी जितना काम करता है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर्स हैं, हर चीज़ है उनके पास। यहाँ पर बहुत कम है, हाथ से काम करना पड़ता है, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद रिलीफ देना पड़ता है, इसलिए आदमी यहाँ ज़्यादा है। In Rolling Mill 2, 1 day a week is given over to repair and maintenance. यूरोपियन कंट्री में पूरा स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज है और इसके चलते क्या होता है कि 10 मशीनों पर एक आदमी काम करता है, जबकि हमारे टिस्को में एक मशीन पर 10 आदमी काम करता है। यूरोप में काम करने वाला स्टील वर्कर सोचता है कि हम चाहें तो एक साथ 10 मशीन बंद कर सकते हैं। यहाँ टिस्को का वर्कर ये सोचता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो बाकी 9 आदमी मिल करके काम कर लेंगे। Every Sunday, 154 million Indians watch the Ramayana, a religious epic turned into Hinduism's most popular soap opera. पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय न हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच न आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे। The hero Ram is the perfect man. His sense of devotion and duty overcomes the agonies and dilemmas of family life. It's a parable about moral values holding the family and the nation together. ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। देखो बेटा, रामायण में जो दिखा रहा था उसमें राम वन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको जाने की क्या जरूरत है जब दशरथ खुद बोल रहे हैं मत जाओ मत जाओ। लेकिन तो वो तो उसकी स्टेप मदर तो नहीं जाने के लिए, अपने पिता का वचन को निभाने के लिए वो जा रहे थे। और चूंकि उनके फादर, उनके पिता बोल दिए कि हम तुम लोग को वचन दे दिए थे अपनी मदर को, अपने वाइफ को, उसी वचन को निभाने के लिए वो बन जा रहे थे। बन जाने का कोई कारण नहीं था। अगर वो चाहते तो खुद छीन लेते अपने भाई का राज, चाहते तो छीन लेते, लेकिन he was the worthy son of his worthy father। और भी कुछ वैसे तुम तो स्टोरी तो तुम देखे हो, पूरा जानते हो, लेकिन उसमें ये चीज़ जो छोटी छोटी बातें दिखाई जाती है, आप उस बातों को, पुरानी बातों को अपनी जिंदगी में ढाल सको। एक अच्छा भाई बनो, एक आज्ञाकारी पिता बनना चाहिए, आज्ञाकारी बेटा, बिला अपना वाइफ जो हो वो बहुत अपने हस्बैंड के लिए सेम हो। The Tata worker must honor and respect the dutiful chairman with his labor. This hard reality behind the gentle myth of paternalism is one of the secrets of Tisco's success. Years ago, we made history. While men of vision designed the steel plant,
social scientists created for the first time in India welfare programs for the men of steel. 8-hour day, 1912. Free medical aid, 1915. Leave with pay, 1920. Workers' Provident Fund, 1920. Accident compensation, 1920. Maternity benefit, 1928. Profit sharing bonus, 1934. Retirement gratuity, 1937. Moves that are milestones in industrial relations. We make happy workers. We also make steel. After 50 years at TISCO, Russi Modi, the chairman and managing director, is genuinely looked up to in a uniquely Indian way by his workers. मोदी का नाम सुनते ही यहाँ के जितने भी वर्कर ही नहीं, जितने बच्चे हैं, सबके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। उनमें जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इतना है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी की बात है कि उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में भी हुई है, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, जस्टिस को लाइक करते हैं। For the workers, Russi Modi combines the best of modern India and its colonial past. लेकिन डिसिप्लिन में, जस्टिस में, सब में वो अपने काम में एकदम परफेक्ट रहते हुए, लेकिन सबको हंसते हंसाते पूरे टाटा कंपनी की गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। The annual Jamboree, to celebrate the end of a year of worker-management dialogue, is held with a reverential note of company rhetoric about it. इसके लिए बहुत एडिक्वेट भी नहीं। मिस्टर बी एन सिन्हा पूछेंगे, अगर मोदी साहब कहा है कि वो खुद उसका स्वयं इसका जवाब देंगे। आज पूरा देश 20वीं सदी को छोड़ 21वीं सदी की जाने की तैयारी कर रही है। देश का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट देने वाला यह टिस्को और सबसे पहले वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजमेंट का सिद्धांत देने वाला यह टिस्को इस दौर में पीछे नहीं रहेगा। कि टाटा स्टील के नवीकरण और विस्तार की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार किन किन योजनाओं की मंजूरी दे चुकी है। मेरा दूसरा प्रश्न है, 3 मिलियन टन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए RM2 का दायित्व क्या होगा। आपने बहुत क्या अभी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है, कहाँ गया। हाँ, हम लोग 3 मिलियन टन जाने वाले हैं। उसका परमिशन, लाइसेंस, परमिट जो कुछ कहा वो मिल गए हैं। कल सवेरे 11 बजे मिले हम लोग। Mr. Modi went on to talk of the future. New technology, computerized furnaces and continuous casting have already been installed. But further modernization is needed to make TISCO competitive. There will have to be redundancies in steelmaking, but no one will lose their job. He promised everyone would be retrained and absorbed into new TISCO enterprises, unlike in the high-tech industries of the West. Men of steel. But to make it in steel these days, you need brains as well as brawn. You have to move nimbly in such a competitive industry. So more and more of our plant is highly automated. Our research and development is highly advanced, and our products are in high demand. Our costs are down, and our productivity is up. British Steel is one of the world's most profitable steel companies. British Steel. Not just a pretty face.
Tatas are proud of their aging but well-maintained machinery. It still turns out more finished steel than the original designers ever thought possible. Industrial relations are excellent and productivity is high. By Indian standards, pay is good. In a nation of high unemployment, Tisco offers the golden egg of a guaranteed job to one child of every employee. Years ago, Tatas installed this railway wheel mill. The British, who built and supplied India's railways, would not sell to them, so Tisco bought from America. One company of wheel makers in Britain, Bakers and Bessemers, soon went bankrupt. More than 1 in 5 workers in the plant are local aboriginals, tribals from the forested hills. Tisco does not employ them directly. They work through subcontractors for less than 75 pence a day to manhandle hiccups in the supply of raw materials. They get none of the advertised benefits, though the company does have tribal welfare schemes for them. This limitless supply of cheap labor is another secret of Tisco's success. As one of the new working elite, Sinha does the shopping himself, preferring his wife to stay at home. वो निकालो लाल वाला लाल हाँ हटा तो कर याद रखो तो कर याद रख 100 ग्राम 2 रुपए 1 रुपए नहीं और सस्ता लगाता है कितना हुआ 180 ना अरे सुना क्या चल लो अरवा नहीं है अरवा चावल नहीं है अरवा तो गोलदाना होगा दिखाइए गोलदाना दिखाइए तेरा ये कैसे है 10 रुपए किलो हाँ 10 रुपए किलो 10 ये दीजिए 1 किलो दीजिए. A staggering half of his monthly salary of £190 goes on food. Mr. Sinha is one of the privileged minority earning a regular salary. He is actually proud to be one of the 2.5% who pay income tax. दीजिए तो जरा सुंदर अगरबत्ती ये झोला में डालिए. एक अच्छा अगरबत्ती होना चाहिए. ये क्या है? सुधा सिंगार अगरबत्ती. कितना दाम है? 3 रुपया. होटल कितना हुआ? 13 रुपया ना. मुझे पैसा बहुत मिलता है, ये बात है. जितना मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इनकम टैक्स और इत्यादि के चलते जो हम घर पेमेंट ले जाते हैं वो ज़्यादा पूरा नहीं पड़ता. कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, लेकिन तब भी उस कमी को हैंड टू माउथ हम दूर कर लेते हैं. कोई ऐसा इतना कोई ट्रबल नहीं रहता है. पैसे हर समय पास में रहते हैं. महीना ख़त्म हुआ, पैसा ख़त्म हुआ, यही हालत है. लेकिन मेरा भी कुछ कर्तव्य है अपने गांव के लिए, अपने धरती के लिए. जो ज़मीन हमारा है, इसलिए साल 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ हमको घर के लिए देना पड़ता है. किसी काम के लिए नहीं देना पड़ता है. किसी की शादी हुई या कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए हम लोग कुछ जमा रखते हैं जो हम घर को हेल्प कर सकें. बस इतना ही है और कुछ नहीं.
The girl next door, whom the Sinhas have virtually adopted, as they have no daughter of their own, helps them prepare dinner for the family of one of Mr. Sinha's friends. His wife seldom leaves their rent-free company house, with its small kitchen, backyard, front room, and one bedroom. हाँ, उसको पूरा काट दो उस अदरक को। उसके बाद में मिर्चा काट देना पतला पतला। हाँ। ऐसा करें? ये लंबा है। नहीं छोटा कर। इसको छोटा कर दो। और इतना हो जाएगा। इसको डाल के और दीजिए। हाँ, पतला पतला और काट पूरा पूरा काट। हाँ। तो ये आया मतलब बात करने से पहले प्रोडक्शन चालू हो गया ना? हम लोग तो बैठे रहते हैं स्टील के लिए। बहुत स्टार्ट किया है। हाँ? एफ फर्नेस ना? बहुत स्मूथ। तुम लोग बैठे रहते हो, इसलिए बैठे रहते हो because I'm giving you delivery का 2 hours करना। बहुत अच्छा खाना बनाएगा। हमारा वहाँ क्या खाइएगा आपने? वहाँ क्या खाएंगे? इस पर मैं सोचता हूँ कुछ बड़ा क्वार्टर मिले। इस वक्त मैंने कहा ना मेरे वाले फ्लैट में आ गया। हाँ वो फ्लैट मिल जाने से ना। No, I'm sure you should get that. Why will you not get that? उतना सर्विस पॉइंट तुम्हारा हो गया होगा कि तुमको वो फ्लैट मिल जाना चाहिए। And once you get it, you will अच्छा हो जाएगा। बच्चों का भी ये अच्छा हो जाएगा। बगल में स्कूल है। After serving the men, Mrs. Sinha does the washing up under the cold tap in the backyard. Out of respect for the men, Mrs. Sinha and the female guests only eat after the men have finished and the washing up is done. They take their food separately on the family bed next door. पिताजी तो चाय बनाओ। हमारे चाय बनाने का तो चाय काम करिए ना। नहीं डाला। The company organizes regular works visits for employees' wives. It is good industrial relations for wives to see their husbands' working conditions. Mrs. Sinha and the girl next door enjoy the rare day out. पानी है, ख्याल रखें। घर पे भी इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ। कितना इनका था टॉकिंग पे? जी ये वाला रोल करके जरा कितना? रुक गया वहाँ।
अच्छा ठीक है धक्का मार देता है। देखो देखो कितना पतला हो गया। कितना पतला कितना मोटा करना वाला कर। हाँ वो लोग कर लेगा बेटा तो काम नहीं करेगा। उधर से आ रहा है। दादा रुकिए। डाले हुए लेकर मिलाया नहीं आप डाले थे। हो गया चाय बन गया। हाँ चाय दे दियो। आइए बैठिए। ठीक ठीक बैठिए। ब्राह्मणों कब ले लीजिए। आइए बैठिए। दादा रुकिए। दादा हम उठ रहा है। तो यहाँ आने पर यहाँ का हरियाली, यहाँ का सब रंग देख करके हम यहाँ रम जाते हैं। 2-3 साल के अंदर में हम लौट करके यहाँ आना चाहते हैं और अपने छोटे भाई का हाथ बताना चाहते हैं खेती में। हमको ज़रूरत है लैंड हमारे जो इधर उधर बटे हुए हैं सब एक जगह जमा हो, चकबंदी हो जाए, जिससे कि हम एक प्लॉट हमको मिले, जिससे कि हम अपना जो पैसा लगाएं इस खेती में उसका गुड रिटर्न हमको मिल सके। और मेरे समझ से 2-3 साल के अंदर में हमारे पास कुछ कैपिटल पैसा भी हो जाएगा, हमारे बच्चे मैट्रिक पास भी कर जाएंगे, उसके बाद उन लोगों को कॉलेज जाना होगा, तो हम फ्री रहेंगे अपने फैमिली के बर्डन से। हमारे पास कुछ पैसा रहेगा, हमारा लैंड एक जगह रहेगा, तभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ आएँ और आकर कुछ अच्छा करें। लेबर प्रॉब्लम है, लेबर कम है, कम मिलती है। ठीक है, हम लोग आकर के ट्रैक्टर खरीदा जाएगा और क्या। हाँ यहाँ से मतलब यहाँ से हाँ बोलो। तो वही खटाखट करने लगा तो हम उठे तो देखे कि घर के बाहर सब डोल रहा है। उसके हम रहे